Dear students, good afternoon. I am here to just help you and guide you with respect to science paper which is on Monday. So just to tell you that which lessons you should prepare or you should take care of while preparing for science board exam of standard 10 on Monday. So you can begin with our environment first, biology, because it is a very simple lesson of 10 marks, followed by life process. It is a must lesson of 14 marks. And then third lesson also of biology, how do organisms reproduce? It is also of 11 marks. So if you add these three lessons, 14 plus 10, 24 plus 11, you will get 35 marks of three lessons from three lessons of biology. And then fourth lesson, human eye, the colorful world, it is of 9 marks. So by preparing these four lessons, you are scoring 44 marks, and the most important, if you will attempt MCQ of remaining lessons other than these four, they are of 16 marks. So 4 lessons plus 16 marks of MCQ, you are supposed to score 60 marks here. And just now I am also going to give you which are the questions for that. Now I would like to add 2 more lessons. One very important lesson with numericals, electricity, that is of 10 marks. You have to learn, prepare, and in the morning I started the numericals of electricity. So this is one more lesson, electricity you have to add. So total I am just giving you 5 lessons, 4 lessons plus 16 marks MCQ. You are supposed to get 60, and one more lesson which is very important, that is electricity. So this is our 5 lessons you can start with today. More informations I will give you later on. So I think straight away now I would like to give questions. Which questions you should concentrate or you should take care of. So our environment is concerning, I am not going to give you any question. It's a very simple lesson. Within an hour or two, you can just go through this lesson and you can learn and prepare. So first of all, I will to start with life process of 14 marks. Any student can learn and prepare this lesson. Now this lesson is divided into 4 sections. The first one is nutrition, second one transportation, third respiration, and the fourth excretion. In nutrition, the initial beginning of this lesson is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, some important topics are there. For example, chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. Carbon dioxide is necessary for the process of photosynthesis. These are the 2 very important activities. And one very short type of question is that events occurring during photosynthesis. So this is nutrition. Second part is respiration. And you know there are 2 respirations, aerobic and anaerobic respiration, followed by human respiratory system. In aerobic respiration, there is a very good question, breaking down of glucose molecule by different pathways. So just concentrate on that also. Third topic is transportation. So far as transportation is concerning, it is belonging to our heart, the pump, our heart. Then the circulation of blood in our heart is also there next to it. Then comes platelets, lymph and blood vessels, that is artery and vein. तो फिर से आप जरा ध्यान से सुन ले, ट्रांसपोर्टेशन में 2 पार्ट है, ह्यूमन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है और प्लांट बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है. ह्यूमन के अंदर रिपीट कर दूं, अवर पंप द हार्ट, उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अवर हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय ब्लड के ऊपर ही है ब्लड वेसल्स विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन, आर्टरी, वेन्स, प्लेटिलेट्स एंड लिम्फ. पार्ट 2 जो है ट्रांसपोर्टेशन, वो एकदम इजी सिंपल है प्लांट के अंदर, और उसमें 2 शॉर्ट नोट है, जाइलम और फ्लोएम. नेक्स्ट आएगा आपका जो टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेशन. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर फॉर द बोर्ड एग्जाम. रेस्पिरेशन में 2 है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. और लास्ट टॉपिक बचता है हमारा एक्सक्रेशन. और एक्सक्रेशन में शॉर्ट नोट एक ही है,
ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, या तो फिर उसको टर्न करके पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद फिगर। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस जो है वो क्लियर कर दिए। नाउ आई थिंक आई शुड गिव यू द क्वेश्चंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री, जो 10 मार्क्स का है। अब इसमें आप पीछे से स्टार्ट करें शॉर्ट नोट्स। क्लोर अल्कली प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ NaOH, फर्स्ट शॉर्ट नोट। फिर आएगा आपका बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ये है। और उसके बाद स्टार्टिंग में 2 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन है, और एक तो बार बार पूछा जा चुका है कि रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ सल्फ्यूरिक एसिड विथ फिगर, और उसी क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि रिएक्शन ऑफ जिंक विथ NaOH विच प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट। तो ये है एक क्वेश्चन जिसको बुक में लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड एंड बेस। और एक दूसरा क्वेश्चन जो है जिसमें बताया गया है कि ग्लूकोज एंड ये भी एक्टिविटी है कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल दे डू कंटेन हाइड्रोजन बट इवन देन दे आर नॉट एसिड। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जिसके ऊपर आप एसिड, बेस और सॉल्ट, और ख़ास करके इसमें वो जो शॉर्ट नोट्स मैंने बताई थी, ब्लीचिंग पाउडर, POP, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इनमें यूजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड लेसन के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर किए। नाउ लेट अस डिस्कस एक और लेसन हम लेते हैं, केमिस्ट्री, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ वंस अगेन 10 मार्क्स। स्टार्टिंग बहुत ईजी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फिर आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। फिर एक छोटा सा फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। इसका रीजन देना है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ HNO3। फिर एक और छोटा सा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, एक टेबल है, टेबल 3.2, उसको लर्न कर ले। फिर आएगा अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बाय डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड NaCl MgCl2। उसमें बुक में डॉट की जगह ऐसे क्रॉस किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर 3 टॉपिक है जिसमें कुछ रिएक्टिविटी ऑफ दोज मेटल्स विच आर लो इन द रिएक्टिविटी ऑर्डर, दोज विच आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी ऑर्डर, उनके कुछ केमिकल इक्वेशन है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है reactivity of those metals which are high in the reactivity order. So refining of copper sulfate, repeat, refining of copper sulfate by electrolytic process is very important topic with figure। और उसके बाद last 2 topics है corrosion and how to prevent corrosion। तो ये थे questions of metals and non-metals। अब एक बायोलॉजी का लेसन जो पढ़ना ही है आपको, जस्ट लाइक आवर एनवायरनमेंट, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें 2 बल्कि 3 पार्ट है। एक पार्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरे में एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इजी है और चांसेस ज़्यादा है। ये स्टार्ट होता है फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये 6 शॉर्ट नोट है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर आप देखो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है यहाँ पर। और एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो मैं कल आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सिंपल है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी टू अवॉइड प्रेगनेंसी, से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से वो आपको लिखना है। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखें और इस पर प्रिपरेशन करें। तो एक लास्ट लेसन आपको बता दूँ, फिर कुछ डाउट्स होगा।
और ख़ास ध्यान रखें, मैं YouTube पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मॉर्निंग में एक पार्ट हुआ है, अभी 3 बजे दूसरा होगा। फिर मैं आपको लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शंस के न्यूमेरिकल्स करा दूंगा और 2-3 शॉर्ट नोट बायोलॉजी के मैं कल शाम तक क्लियर करूंगा। अब लास्ट एंड फाइनल लेसन के क्वेश्चन सुन ले। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में स्टार्टिंग में 4 शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। एक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, फिर 3 डिजीज है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। फिर 2 क्वेश्चंस प्रिज्म बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना। पहले 4 शॉर्ट नोट मैंने आपको बताई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, उसके बाद मायोपिया है, फिर उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। अब 2 क्वेश्चन प्रिज्म पर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स बोर्ड में बार बार पूछी जा चुकी है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, टिंडल इफेक्ट 2023 में पूछी गई, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पूछा गया 23 में। बिल्कुल इसी तरह से 2 छोटी शॉर्ट नोट है, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इलेक्ट्रिसिटी, आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, आपको इसको प्रिपेयर करना है और ट्यूशन पर इसका रिवीजन हो चुका है, न्यूमेरिकल चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 3-4 शॉर्ट नोट पहले सुन ले। एक तो ओम्स लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सीरीज कनेक्शन की फॉर्मूला, पैरेलल कनेक्शन की फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक शॉर्ट नोट, और उसके बाद एप्लीकेशंस यानी यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट तो डेफिनेशन जैसी है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, फार्मूला एंड यूनिट, और लास्ट में एक टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, ये पढ़ ले। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है। आई होप डेफिनेटली इट विल हेल्प यू एंड गाइड यू। स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।